Welcome back, students. Today we are going to discuss about our new topic, system of units. System of units is a complete set of units which is used to measure all the fundamental as well as derived quantities. Okay, we have to design a system of units, or we can say we have to design a group of units which is used to all the fundamental quantities as well as derived quantities, and that particular group is known as system of units. We have some commonly used system of units. First one is CGS system of units. Here C stands for the centimeter, G stands for gram, and S stands for the second, and it is firstly adopted by the France. And after that we have next one is FPS system. Here F stands for foot and P stands for pound, and S stands for second. Pound is the smaller unit of mass, and G is the smaller unit of mass also, and kilogram is the bigger unit. Okay, and foot, 1 foot is equals to 12 inches and 1 inch is equals to 2.54 centimeters. And next one is FPS system is adopted by the British peoples. And after that we have another system of units, that one is MKS system. MKS system, here M stands for meter, M stands for meter, K stands for kilogram, and S stands for second. It is again developed by the French peoples. And after that we are nowadays in our India and all over the world we are using a very commonly used system of units which is known as SI system of units. Here SI stands for the System International de Unite. System International de Unite, and it is a French word which is equivalent to international system of units, which is equivalent to international system of units. And in international system of units we have different units for the different physical quantities. Like if we are talking about the fundamental quantities, first one is our mass. For mass we will use the kilogram, and for length we will use the meter, for time we will use second, for electric current we will use the ampere, and for luminous intensity we will use candela, and for amount of substance we will use the mole, and for the our temperature we use the Kelvin. Okay, and some modified supplementary SI units are also there, like for angle. For measuring the angle we use radian, and one more angle is there, that is known as the solid angle. It will be discussed now after a few minutes, and the solid angle is measured in the steradian. Okay, so guys, this is all about the system of units. Now we are going to discuss about the units, like what is ampere, what is meter, what is kilogram, what is 1 mole, what is candela, like that one. Okay, let's discuss about the SI units one by one. First one we are discussing about the SI unit of length. The SI unit of length is meter, and 1 meter is defined as the length of the path traveled by light in vacuum during a time interval of 1 by 299729458. Okay, लाइट वैक्यूम के अंदर इतने टाइम के अंदर 1 by 299799458 इतने टाइम 1 by 29979258458 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड के इतने पार्ट के अंदर लाइट वैक्यूम के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज किलोग्राम. 1 kilogram is the mass of the prototype. Prototype is the dummy, simply a dummy. Suppose you often see the dummy as you go a mobile shop. Firstly, the shopkeeper will show you the demo of the mobile, and it is a dummy. It simply looks like our mobile, but it is not in actual it is not actually the mobile. Okay, simply it is the prototype of a cylinder of platinum iridium alloy. Okay, 1 किलोग्राम क्या है हमारे पास, मास है किसका,
प्रोटोटाइप सिलेंडर का, और उस प्रोटोटाइप सिलेंडर किसका बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम के एक अलॉय का बना हुआ है, और जिसकी हाइट उसके डायमीटर के बराबर है। ओके, सो 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय whose height is equals to its diameter, and it is preserved in the International Bureau of Units and Measurement, which is at the Severus near Paris. Okay, पेरिस के पास में एक जगह है सेवरस, वहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ सिस्टम एंड यूनिट्स बनाया गया है, जहां पर सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो प्रिजर्व करके रखी जाती हैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम का एक जो एक्चुअल मास है, जो किससे मिलकर के बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम के से, इरिडियम की अलॉय से मिलकर के बना हुआ है। और ये प्लेटिनम और इरिडियम का ही क्यों बनाया गया है अलॉय, क्योंकि प्लेटिनम और इरिडियम का जो अलॉय रहता है उसका कोरोजन नहीं होता, जिसकी वजह से उसके ऊपर टाइम के पैसेज का और एनवायरमेंटल कंडीशंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 किलोग्राम ही रहता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द यूनिट ऑफ टाइम। फॉर defining the time we have to learn a mobile number. This is 9192631770. okay, क्या है कि it is 1 second is the duration of these periods 91 92 63 1770 periods of the radiations corresponding to the transitions between the two hyperfine levels of the ground state of cesium 133. cesium 133 की ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो हाइपरफाइन लेवल्स होते हैं उनके बीच में रेडिएशंस का जो ट्रांजिशन है, उनके पीरियड्स कितने होने चाहिए, इतने पीरियड्स जितने टाइम के अंदर कंप्लीट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। अगेन 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ these much periods of radiations corresponding to the transitions between two hyperfines. Two hyperfines here hyperfine means the two fine levels. Okay, and transitions means the radiations are going from this level to this, and this is vibrating, or simply we can say oscillating between these two levels, and these periods of radiations during the transition of two hyperfine levels of the ground state of the cesium atom, cesium 133 means cesium 133 के ground state के अंदर दो hyperfine levels हैं और उनके बीच में radiations का transition होता है कितनी बार, इतनी बार, और जितने टाइम के अंदर इतनी बार ट्रांजिशन हो जाता है उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, 1 सेकेंड बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज आवर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द electric current, and the SI unit of electric current is ampere, and 1 ampere is that constant current which is maintained in two parallel current carrying conductors of infinite length. Okay, which is maintained between two parallel current carrying conductors of infinite length and negligible cross section area, and which were separated by a distance of 1 meter, and the force between them is equals to 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। ओके, अगर हमारे पास सपोज दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिनकी लेंथ इनफाइनाइट है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, जैसे कि मैं अगर इस मार्कर के बारे में बात करता हूं तो मार्कर के लिए ये लेंथ, ये तो क्या रहेगी हमारे पास लेंथ। अब इस केस के अंदर क्या बोला गया है, लेंथ तो हमारे पास इनफाइनाइट है, और अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो सामने से जो ये हमें नजर आता है सर्कुलर एरिया, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर्स का क्या है, नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही पतली वायर्स हैं हमारे पास, 3 वायर्स हैं, और उन्हें कितने डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट किया गया है, दोनों ही वायर्स के बीच का सेपरेशन 1 मीटर के बराबर है, और उन दोनों वायर्स के बीच में कितना फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, 2 into 10 raised to power -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स जब प्रोड्यूस हो तो हम बोलेंगे कि करंट जो हमारे पैरेलल वायर्स के अंदर फ्लो कर रहा है वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। अगेन लेट्स लुक एट द डेफिनेशन। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच मेंटेन्ड इन द टू स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन एरिया placed at 1 centimeter apart in vacuum
and wood produces between these conductors a force equal to 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter of its length. Okay, next is our SI unit of temperature, and SI unit of temperature is Kelvin. It is simply represented by capital K, and 1 Kelvin is the fraction 1 by 273.16 of the thermodynamical temperature of the triple point of water. वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 1 बाय 273 टाइम्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, केल्विन बोलते हैं। और ट्रिपल पॉइंट का हमारे पास मीनिंग है कि एक ऐसी स्टेट जिसके ऊपर पानी अपनी तीनों ही स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट के अंदर भी, लिक्विड स्टेट के अंदर भी और गैसियस स्टेट के अंदर भी। और सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट जिस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और थर्मोडायनेमिकली वो टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, 0 केल्विन के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कैंडेला। कैंडेला इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। luminous means a source which radiates light. Okay, so like we have sun radiates light in all the directions, so light, sun is a luminous source. In our home a CFL radiates light in all directions, so it is our luminous source in a room. And if you are talking about the natural luminous source, then sun is our natural luminous source. And the in SI unit for luminous intensity is candela. It is represented by C small d, and 1 candela is the luminous intensity in a given direction. किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर 1 candela luminous intensity रहती है, इसके इक्वल of a source that emits monochromatic light. Okay, किसी भी सोर्स की जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस, मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग होता है कि एक ही तरह की रेडिएशंस को एमिट करे। जैसे कि अगर हम बात करें सनलाइट की, सनलाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स हमारे पास रहते हैं। जैसे कि हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि हम 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करवाते हैं जब प्रिज्म के ऊपर हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं। तो वो वाइट लाइट हमने यहाँ पर नहीं लेनी है, हमने क्या लेना है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है। जैसे कि CFL है, CFL से जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। और जो सोडियम लैंप होते हैं, मरकरी की लाइट है वो भी मोनोक्रोमेटिक है। सोडियम लैंप से निकलने वाली लाइट भी मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। सोडियम लैंप्स आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट के तौर पे देखे होंगे, येलो कलर की लाइट एमिट करते हैं। ओके, ऑफ ए सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10 raised to power 12 हर्ट्ज, मींस इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, कैसी रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट करता है कोई भी सोर्स ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक कैंडेला बोलते हैं। एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी रहता है द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मींस एक यूनिट टाइम के अंदर यूनिट एरिया से जितनी एनर्जी बाहर निकलती है या फिर एब्जॉर्ब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है रेडिएंट इंटेंसिटी। रेडिएंट इंटेंसिटी क्या रहेगा, इट मींस कि यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। वाट पर स्टेरेडियन, हियर स्टेरेडियन इज द SI unit of solid angle. It will be discussed later. Okay, so this is the SI unit of candela and the definition of 1 candela. And next one is the SI unit of amount of substance, and the amount of substance is represented in moles. And 1 mole is the amount of substance which contains as many elementary entities. Elementary here, elementary entities means that the building block of any substance, means जिनसे मिलकर के हमारा कोई भी substance बना होता है। जैसे हम एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम के लिए एलिमेंट्री एंटिटीज क्या हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, हम क्या बोलेंगे उनको कि एलिमेंट्री एंटिटीज बोलेंगे। हम 11th-12th के जो स्टैंडर्ड हैं उनके ऊपर 3 ही तरह की एलिमेंट्री एंटिटीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं हमारी जो एलिमेंट्री एंटिटीज हैं उनका नंबर बढ़ जाता है। ये लगभग 60 के करीब हमारे पास एलिमेंट्री एंटिटीज हैं जिनसे मिलकर के हमारा कोई भी एटम बना हुआ होता है। ओके, एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ
कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 के आइसोटोप के अंदर, और उसका मास कितना होना चाहिए 0.012 किलोग्राम। इतने मास के अंदर जितने अमाउंट में हमारे पास एलिमेंट्री एंटिटीज प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा 1 मोल बोल देते हैं। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसके 0.012 किलोग्राम के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसे हम क्या बोल देंगे 1 मोल बोल देंगे। अब हम कुछ सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स which is used to measure the angles, plane angle and the solid angle. Firstly, we will discuss about the case of plane angle. The plane angle is represented in radians and it is measured in radians, and it is defined as the plane angle subtended at the center of a circle. Suppose we have a circle and this one is the radius of the circle, and suppose this is the center O. The plane angle subtended at the center of the circle by an arc. Suppose this is the arc subtended at the circle by an arc equal to the length of the radius. Okay, means अगर हमारे पास कोई सर्कल है और सर्कल के ऊपर हम एक आर्क लेते हैं और उस आर्क की लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारे पास सेंटर, सर्कल के सेंटर के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे स्टेरेडियन बोलेंगे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे 1 स्टेरेडियन बोलेंगे। थीटा, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, प्लेन एंगल को, और रहता किसके इक्वल है, ये आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल रहता है। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, आर्क किसके इक्वल ली है, एल के इक्वल ली है, और रेडियस आर के इक्वल ली है। ओके, तो ये था हमारे प्लेन एंगल के बारे में। इसी तरीके से सॉलिड एंगल के बारे में है। सॉलिड एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है। अब यहाँ पर हमें 3 डायमेंशनल केस कंसीडर करना पड़ेगा, और उसके अंदर हम एक सर्कल ना कंसीडर करके हम क्या कंसीडर करेंगे, एक स्फीयर कंसीडर करेंगे। मैं इसको वर्क के लिए रब कर देता हूँ। सर्कल ना कंसीडर करके हमें यहाँ पर एक स्फीयर को कंसीडर करना है। Suppose we have a sphere. Solid angle is the solid angle is represented in terms of steradian, and it is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere. Again, let us consider here we have this one O is the center of the sphere. By a surface of the sphere, we have to take a surface on the sphere equal in area to that of a sphere, having each side equal to the radius of the sphere. Means हमें क्या करना है, हमारे सरफेस जो हमने स्फीयर कंसीडर किया है, स्फीयर के ऊपर एक स्क्वायर कट करना है, और उस स्क्वायर की हर एक साइड किसके इक्वल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होनी चाहिए। तो वो स्फीयर हमारे स्फीयर के सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये सेंटर कंसीडर किया है, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक ये स्फीयर कट कर दिया जिसकी हर एक साइड किसकी इक्वल है हमारी, थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ इसको कि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो ये हमने एक स्क्वायर कट कर लिया इसके ऊपर, और ये स्क्वायर, ये 3 डायमेंशनल आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये स्क्वायर यहां पर सेंटर के ऊपर, स्फीयर के सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड करेगा, ये इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। सिग्मा सॉरी ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। ओके, लेट्स सी अगेन, सॉलिड एंगल और 1 स्टेरेडियन, इट इज डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर by the surface
of the sphere equal to the area of a square having each side equal to the radius of the sphere. हर एक साइड स्फीयर की किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारे रेडियस ऑफ द स्फीयर के इक्वल होनी चाहिए. तो हमारे पास जो एंगल सब्सटेंड होगा किसके ऊपर, हमारी जो स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर के ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेरेडियन बोलेंगे, वन स्टेरेडियन बोलेंगे. और स्टेरेडियन इसके इक्वल रहता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. So guys, this is all about the system of SI units and the system of units, and in next lecture we are going to discuss about some more units which were used to measure the large scale as well as in small case parameters. Okay, thank you.